हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल श्री रामबान एजुकेशन। इसमें बोर्ड एग्ज़ाम जो नवंबर 2021 में हो रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर, उसके आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट सच एज हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इससे आपका बेस पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई भी एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक फॉलो करने का दरकार नहीं पड़ेगा और बोर्ड कोई भी क्वेश्चन देगा उसको अपने आसानी से फोड़ सकेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू। बच्चों, आज ज्योग्राफी में सॉइल करेंगे, चैप्टर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चंस पार्ट 2। इसमें 25 क्वेश्चन है। पार्ट 1 पहले सॉइल का मैं करा चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सॉइल में मैं 4 पार्ट बनाया हूँ, 4 पार्ट और हर पार्ट में 25 क्वेश्चन, तो आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये 100 क्वेश्चन करने के बाद आप आसानी से बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन हो, जितना भी ट्रिकी हो, आराम से कर पाएंगे। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि स्किप मत कीजिए, कहीं पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका छूट जाएगा और वही शायद बोर्ड में आ जाए तो परेशानी में पड़ सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट्स, लेकिन उससे पहले एक बार रूल्स। क्वेश्चन आएगा, उसके बाद ऑप्शन, सारा ऑप्शन पढ़ने के बाद 10 सेकंड का टाइमर आएगा और टाइमर के बाद आंसर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, द सॉइल दैट आर फॉर्म फ्रॉम द सेडिमेंट डिपोजिटेड बाय द रिवर आर कॉल्ड। ऑप्शन ए रेड सॉइल, ऑप्शन बी लेटरेट सॉइल, ऑप्शन सी ब्लैक सॉइल, ऑप्शन डी alluvial सॉइल। Time up, and the correct answer is alluvial soil. Question number 2, the study of the process that leads to the formation of soil is. Option A zoology, option B pedogenesis, option C botany, option D soilology. Time up, and the correct answer is pedogenesis. Next question, question number 3. Crops can be cultivated in red soil with the adequate use of. Option A high yielding seeds, option B fertilizer, option C pesticides, option D all of these. टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर की मदद से रेड सॉइल में कल्टीवेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन। ऑप्शन ए रनिंग वाटर, ऑप्शन बी विंड, ऑप्शन सी फॉल्टी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। Time up, and the correct answer is all of this. Next question, question number 5. The soil which is extensively spread in Tamil Nadu. Option A alluvial soil, option B black soil, option C red soil, option D laterite soil. Time up, and the correct answer is red soil. Next question, question number 6. What are the types of alluvial soil? A fertile, B bangar, C khadar, D both B and C. Time up, and the correct answer is option D, both B and C. Bangar and Khadar are 2 types of alluvial soil. Number 7. Laterite soil have developed as a result of. Option A fragmentation of metamorphic rock, option B
disintegration of ancient crystalline rock, option C, leaching, option D, none of these. Time up, and the correct answer is leaching, option C. Question 8. When a complete layer of the soil on the surface is removed over a large area by running water is called option A, afforestation, option B, gully erosion, option C, leveling and bending, option D, sheet erosion. Time up, and the correct answer is sheet erosion. Question 9. Red soil is rich in which minerals? Option A, aluminium, option B, iron, option C, nitrogen, option D, phosphorus. Time up, and the correct answer is iron. Iron content is much more, which absorbs oxygen from the atmosphere, and due to iron oxide it looks red in color. Question number 10. Which of these is more fertile, Bangar or Khadar? Option A, Bangar, option B, Khadar, option C, both, option D, none of these. Time up, and the correct answer is Khadar. Khadar is the new alluvium. तो हर साल जब नदी अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आता है तो हर बार नया लेयर ऑफ सॉइल बनता है, तो इसके कारण वो ज़्यादा फर्टाइल होता है. क्वेश्चन 11. लीचिंग इंक्रीजेस द प्रोपोर्शन ऑफ ऑप्शन ए, आयरन एंड एल्युमिनियम कंपाउंड, ऑप्शन बी, lime and silica, option C, both, option D, none of these. Time up, and the correct answer is iron and aluminum compound. Question number 12. Which of the following is the method of soil conservation? Option A, planting shelter belts, option B, control of overgrazing, option C, both A and B, option D, none of these. Time up, and the correct answer is both A and B. Question number 13. Name an area where gully erosion take place. Option A, Himalayan foothills, option B, northeastern part of peninsula, option C, Chambal ravines, option D, all of these. Time up, and the correct answer is Chambal ravines. Question number 14. Major crops grown in alluvial soil are option A, rice, option B, jute, option C, sugarcane, option D, all of these. Time up, and the correct answer is all of these. राइस इंडो गैंगेटिक प्लेन में अलुवियल सॉइल मिलते हैं, तो पंजाब हरियाणा तरफ, वेस्टर्न यूपी वहाँ पे राइस, जूट इधर बंगाल सिक्किम आसाम साइड में, और शुगर केन भी यूपी में खूब होते हैं. तो मेजर क्रॉप्स बोला है, इसीलिए ऑल ऑफ दिस.
क्वेश्चन नंबर 15, लैटरेट सॉइल इज लिखा हुआ नहीं है, वेरी फर्टाइल, लेस फर्टाइल, लैक फर्टिलिटी, डी नन ऑफ दिस। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज लैक फर्टिलिटी। लैटरेट सॉइल लैक्स फर्टिलिटी। फर्टाइल और इनफर्टाइल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लैटरेट सॉइल इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स। तो लैटर इज द लैटरेट सॉइल लैटर होता है और वो ब्रिक्स बनाने में, लाल ईटा जो बोलते हैं, उसमें काम आता है। क्वेश्चन नंबर 16, द सॉइल विच इज फॉर्म्ड अंडर द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल विथ alternate wet and dry period. A. alluvial soil, B. laterite soil, C. black soil, D. red soil. Time up and the correct answer is laterite soil. हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे, और जब हाई रेनफॉल होगा तो उससे भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया फैक्टीरिया मर जाएंगे, तो विच इज़ नॉट यूजफुल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ फार्मिंग। और जो ऊपर का सॉइल है वो थोड़ा नीचे भी चले जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 17, सॉइल इरोजन बाय विंड इज कॉमन इन A. northern plain, B. Deccan Trap, C. arid region, D. foothills of Himalayas. Time up and the correct answer is arid region. arid region एकदम ओपन रहेगा, कम से कम नेचुरल वेजिटेशन, और वहाँ पे विंड एनी टाइम ब्लो करते हैं, सैंड ड्यून्स, तो उसके कारण वहाँ से सॉइल इरोजन बाय विंड इज द कॉमन। Question number 18, where are black soil found? Option A Maharashtra, option B Gujarat, option C Andhra Pradesh, option D all of the above. Time up and the correct answer is all of the above. महाराष्ट्र तो मेन है ही, और डेक्कन प्लेट्यू में आपका आंध्र प्रदेश भी आ जाता है, और गुजरात का कुछ हिस्सा में ब्लैक सॉइल मिलते हैं, तो अधिकतर कॉटन टेक्सटाइल मिल उधर ही है, गुड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, ब्लैक सॉइल। क्वेश्चन नंबर 19, कैश्यू इज ग्रोन इन विच टाइप ऑफ सॉइल? ऑप्शन ए रेड सॉइल, ऑप्शन बी लैटराइट सॉइल, ऑप्शन सी ब्लैक सॉइल, ऑप्शन डी alluvial soil. Time up and the correct answer is laterite soil. Next question, question number 20, name the soil which is ex situ. Option A alluvial soil, option B laterite soil, option C black soil, option D red soil. Time up and the correct answer is alluvial soil. alluvial soil को ex situ बोल लो चाहे transported soil बोल लो, अगर in situ आएगा तो black soil is the answer. Next question, question number 21, name the type of erosion, soil erosion in mountain region. Option A sheet erosion, option B gully erosion, option C wind erosion, option D erosion by man. Time up and the correct answer is gully erosion. माउंटेन एरिया में गली इरोजन ज़्यादा करके होता है, और शीट इरोजन जो होता है जो यहाँ पे लैंड मास ओपन रहेंगे, जैसे कि एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में, वहाँ पे शीट इरोजन। क्वेश्चन नंबर 22,
ब्लैक सॉइल इज पुअर इन ए नाइट्रोजन, बी फॉस्फोरस, सी ह्यूमस, डी ऑल ऑफ दिस। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। तो आप सोच रहे होंगे कि ऑल ऑफ दिस है, तो इससे अपने को आइडिया लग जाता है कि इसमें किसमें पुअर है। अगर कभी क्वेश्चन आया कि दो ऑप्शन है, ओनली वन, ओनली टू, वन एंड टू, तो उससे आपका एक टून काम हो सकता है, क्योंकि अपने को बार बार पता चलेगा कि ऑल ऑफ दिस में क्या क्या चीज़ में वो पुअर है कि किसमें वो रिच है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। ट्रांसपोर्टेड सॉयल आर फाउंड इन ए डेक्कन ट्रैप, बी पेनिनसुलर रीजन, सी नॉर्दर्न प्लेन, डी डेजर्ट रीजन। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन में पेरिनियल रिवर है और वो अपने साथ हर साल अलुवियल सॉइल लेके आती है, और ट्रांसपोर्टेड सॉइल का एग्जांपल ही अलुवियल सॉइल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24। Planting rows of trees and shrubs bordering the field to check the speed of wind is called A. Terrace farming, B. Control of overgrazing, C. Planting of shelter belt, D. Afforestation. Time up and the correct answer is planting of shelter belt. प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट इसलिए किया जाता है कि विंड का स्पीड को रोक सके। क्वेश्चन नंबर 25, ये सेट का आखिरी क्वेश्चन। द इरोजन कॉज ड्यू टू लैक ऑफ वेजिटेशन इन द डेजर्ट एंड ड्राई रीजन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए शीट इरोजन, ऑप्शन बी गली इरोजन, ऑप्शन सी रनिंग वाटर इरोजन, ऑप्शन डी विंड इरोजन। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज शीट इरोजन, सॉरी विंड इरोजन। अगर वो द इरोजन टाइप्स बोलता तो शीट आता, पूछा इरोजन का नाम क्या है तो विंड इरोजन। डेजर्ट एरिया में स्ट्रॉन्ग विंड्स एनी टाइम चलते रहते हैं, जिसके कारण इरोजन होता रहता है। तो ये आज का 25 क्वेश्चन हो गया। एक पार्ट ख़त्म, 2 पार्ट हो चुके, और 2 पार्ट में क्वेश्चन को ख़त्म करने का कोशिश करके 100 क्वेश्चन अगर आपका हो गया तो गारंटी है कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आएगा अपने आसानी से कर पाएंगे। ये 100 क्वेश्चन करने के बाद अब अगर आप कोई भी रिवीजन टेस्ट पेपर, कोई भी मॉक टेस्ट दे दो, गारंटीड है आपका। अगर सॉइल चैप्टर है तो सॉइल का अगर 10 क्वेश्चन आता तो 10 आउट ऑफ 10 आएगा। नेचुरल वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन का देख लीजिए। मैं काफ़ी सोच समझ के पूरा बुक को एक एक चीज़ देख के सारा जगह से सारा टॉपिक कवर करके क्वेश्चन बनाया हूँ, ताकि बच्चों को कहीं से कुछ भी आ जाए आसानी से कर पाए। तो थैंक यू बच्चों। Thank you.